morning, children. Welcome back to the third session of chapter 3, pair of linear equations into variables. Alright, yesterday we saw the graph of quadratic polynomial. It's not in this chapter, but since we are doing graph, we are drawing the graph of second chapter, that is of quadratic polynomial. One graph we saw yesterday, that was parabola open upward. Now take an example. The graph of this quadratic polynomial is going to be parabola open. But how we are getting parabola? So we'll have to take solution of this. We'll have to first convert it into equation. How we did that yesterday? Yes, we saw this p of x is a variable. The value of polynomial in variable x, that is also one variable. It keeps on changing for different values of x. So we called it y. We simplified it. Instead of p of x, we say y. That is equal to minus x square plus 3x minus 2. Alright. So now we are going to obtain the values of x and y. This is now equation. This polynomial is turned into equation after the introduction of y. So we have equation whose solutions are to be sought, means to be found. इनके कितने solutions होंगे? Correct, infinite. Which variable is subject of the formula in the equation right now? Y. So we will pick up different values of and get the corresponding values of y. So we will get few solutions. As you said, there are infinite solutions for this equation. We'll pick up few and then plot those points and see how is the graph. We'll draw the diagram. We'll draw the picture using those points which we are going to plot in Cartesian coordinate system. Okay. So, what different values of x? X की कौन सी वैल्यू चूज करेंगे बच्चा? 0, 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3. We'll pick up only the integral values. You can take 0.5, 0.75, 0.23, any real numbers. But then, plotting such points on the graph paper would be very difficult. So we choose only the integral values of variables. Yes, children, after putting the value of x, the value of y that we will be getting also should be an integer. Very good, integer. It should not be rational number or any other decimal form. क्योंकि हमें involvement of rational numbers दिक्कत देगा, हमें problems देगा while plotting the point. Fine. So, as the girl said, I'm taking 0, x equal to 0. I'm going to calculate orally. 0 square minus 0 plus 0 कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 zeros are 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है. Constant term. So when x equal to 0, okay, मैं लिखता हूँ and then I erase. Some children might not get that. Plus 3 into 0 minus 2. ये तो 0 0 गया, बच गया minus 2. Now I'm going to take x is equal to 1. ये minus तो है. Minus will remain as it is. और bracket में x square, that is 1 square, plus 3 into bracket में, that is 1 minus 2. 1 square is 1 and that minus will be retained. Alright, 3 ones are 3 with minus. Minus 3 plus 3, I'm going to get 0. Okay, that can be done orally then. Chalo, I'm going to take, I'll put the value, otherwise I'll forget what value of x I have taken. So x I have taken अब suppose x minus 1 लेने के बाद y equal to 2 upon 3 आया, तो will you write y equal to 2 upon 3? No. This solution we are going to reject because of this rational number.
ये सारे पप्पूज है। ये क्या है? पप्पू है ना। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो ये पप्पू फेल हो गया। सो जब पप्पू फेल होता है हमको ये भी निकाल देना पड़ेगा। बट ये तो मैंने सपोज कहा, क्या वैल्यू आती है देखते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। -1 ये माइनस रहेगा और x स्क्वायर ब्रैकेट में -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स -1 -1 स्क्वायर, ये 1 बन गया। बट दिस माइनस विल बी रिटेन। ऐसा नहीं माइनस माइनस प्लस कर दिया, हाँ छुओ। 3 1 जा विद, अरे सारे माइनस है तो टोटल कर दो। 6 विद, इज दिस एन इंटीजर? तो पप्पू पास हो गया। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y लिख दो -6। इज दैट क्लियर? ओके, एक्चुअली वी हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशंस हियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि 2-3 पॉइंट ले लिए और लाइन ड्रॉ कर दिया। टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, द पिक्चर प्रॉपर्ली, बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, तभी वो पता चलेगा कि वो पैराबोला है। राइट? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक, चलिए -2, लंबा वाला -2 किया, ठीक है। सो माइनस रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस, बोलो दिस विल बी 4, ये माइनस एज इट इज, 3 2 6 माइनस और -2 माइनस। अब लॉजिक भी यहां आपको दौड़ाना है। जब भी आप x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली। चलिए देखते हैं। नाउ इसकी बारी, टेकिंग x इक्वल टू 2 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट दैट इज 2 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 बट विथ माइनस साइन, 3 2 6 विथ प्लस साइन माइनस। ये क्या आया? विच इज इंटीजर, तो ये पप्पू पास हो गया, 0 लिख दो। राइट, नेक्स्ट -3 और +3 लेंगे। -3 स्क्वायर -9, 3 3 9 विद माइनस साइन माइनस, क्या जवाब मिला? -20। आई एम टेकिंग 3 -3 स्क्वायर, माइनस रहेगा 9, ये 3 3 9 प्लस 9 बनेगा और ये, so that is minus। how many such solutions you will get? और ये जो आपको सॉल्यूशन मिला, each solution is an ordered pair and you have learned last year each ordered pair represents a point in a plane। so और वो भी Cartesian coordinate plane। Rene Descartes, he showed this method, he developed this system। alright, हम उसमें पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन? ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट पॉइंट 0 -2, दैट मींस its x coordinate is 0 and y coordinate is x coordinate is 0, so it should be on y axis। हाँ, ये जो प्लेन, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होने वाला है पॉइंट, it will be on the axis and x equal to 0 means it is going to be on y axis। तो y axis पे -2 कहां है? यहां है। अब उसको प्लॉट करने से पहले एक बात बता दूं। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि ऊपर कुछ ब्लॉक होंगे, नीचे कुछ ब्लॉक होंगे। एक्चुअली देयर आर 26 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 26। आधे ऊपर लेना है और आधे नीचे लेना है। सो आई डिवाइड बाय 2 तो कितने मिले? हाँ, लेकिन ऊपर से एक ब्लॉक छोड़ देंगे और नीचे से एक ब्लॉक छोड़ देंगे। सो एक छोड़ देंगे, चलिए। ऑलराइट, सो दैट विल गिव मी 12। तो आप ऊपर 12 ब्लॉक यूटिलाइज कर सकते हैं, नीचे। सो ये जो x एक्सिस की रेंज है ना चिल्ड्रन, -12 to +12 रहेगा। x एक्सिस की वैल्यू, सॉरी ये y एक्सिस की है, -12 to 12। मैंने तो यहाँ y एक्सिस लिया। अच्छा, हॉरिजॉन्टली आपको मिलेंगे 20 ब्लॉक्स। 20 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, डिवाइड बाय, सो मिला 10। सो 10 ब्लॉक्स किस साइड ले सकते हैं? 10 ब्लॉक उस साइड।
हम -1 कर देंगे क्योंकि एक एक ब्लॉक छोड़ देंगे। ऑलराइट, ओके। सो कितने बचे? सो यहां तक -9 और वहां तक +9। सो इसकी रेंज होगी -9 तो इसको ध्यान में रखिए। इसको ध्यान में रखने के बाद अब देख लीजिए, आर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, जस्ट ऑब्जर्व, बिटवीन -9 and 9? Yes. So scale 1 centimeter is equal to 1 unit. 1 centimeter equal to 1 unit लेंगे। Alright? अब इस यहां देखो, are all the values of y between -12 and 12? कौन सी वैल्यू? -12 तो बाउंड्री पे आ जाएगा, लेकिन -20 नहीं आएगा, और ज्यादा पॉइंट्स लेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। सो -20 की वजह से मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो देखो 2, 4, 16, 20 आ गया, -20 भी आ गया। यहां तो ज्यादा ब्लॉक, ऑन द बोर्ड आई हैव टेकन लेस ब्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक बच गया, 12 चाहिए, है ना? 12 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है। सो इफ यू टेक ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, 12 2 जा +24 ऊपर जाएगा, 12 2 जा 24 विद माइनस साइन नीचे जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये वैल्यू के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात है या बुरी बात है मैं नहीं कह सकता हूं एज अ टीचर, लेकिन ग्राफ नहीं है आपके एग्जाम में, ग्राफ नहीं। अब एनसीईआरटी की बुक आगे को, पहले स्टेट बोर्ड में दे वर नेवर आस्किंग द ग्राफ, बट एनसीईआरटी की बुक आ गई है तो यू कैन बी आस्क्ड ग्राफ। सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। ऑलराइट, बाद में आई थिंक एक आध 2 वीडियो में डालूंगा जो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर दे आल्सो। और कुछ टफ वंस ले लेंगे, यहाँ बहुत सारे लेने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हमारा पोर्शन आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट। अंडरस्टूड द स्केल कैसे चूज करना है? ओके, चलिए दिस फर्स्ट ऑर्डर पे 0 -2, x कोऑर्डिनेट इज 0, सो इट्स गोइंग टू बी ऑन y एक्सिस पे -2 यहां है, दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस। ऑलराइट, सो फर्स्ट सॉल्यूशन is ordered back. It is actually a point in the plane, and then the point, circled point. Okay, chaliye next 1 0. This time y coordinate is 0, so this point is on और x axis पे 1 कहां है? ये रहा 1, राइट, ये पॉइंट। सो वो भी प्लॉट हो गए। चिल्ड्रन, यहां मैंने x इक्वल टू क्या लिया? यहां x इक्वल टू क्या लिया? बट ये 0 और 1 के भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है ना? ये 0.0 और ये 1.0। अरे भाई ये इसके भी 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, फिर 0.20, 0 रख सकते हैं ना? अरे बाबा इसके बीच, अरे कोई किसी के बीच भी ले लो, 0.151, 0.152, अरे यार मिलते जाएंगे। हाउ मेनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड हाउ मेनी रियल नंबर्स? इनफाइनाइट। अब देखो ये और ये और ये सारे पॉइंट्स x की ये सब सारे वैल्यूज ले लूं तो मुझे इक्वेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिलेगी। सो आई गेट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आल्सो। इफ आई प्लॉट देम दे आर गोइंग टू बी बिटवीन दिस 2 पॉइंट। एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो ऐसे थोड़ा होता है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? All this point between 0 and 1 आप x को कंसीडर करेंगे तो you'll get corresponding value of y. So you'll get many ordered pairs and they will be between these two. चलो आगे -1 -6 definitely it's going to be in the third coordinate. x coordinate -1 और वो -6 दोनों यहां मिलेंगे somewhere. All right?
समझ में आया आपको? मैंने कर्व ऐसे ड्रॉ किया, ये ओपन डाउनवर्ड है ना, तो नॉर्मली यू विल गेट लाइक दिस। अब जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे मिलेगा। चलिए उसी तरह आप ये दो पॉइंट के बीच, ये 1.0 है और माइनस 1.0, तो भाई 1.2 1.3 इसके बीच 1.21 1.22 बहुत सारे बीच में जीरो भी आएगा, सॉरी जीरो नहीं, हाँ जीरो भी आएगा ना, क्यों नहीं, वो भी आएगा, बहुत सारे मिलेंगे। और ये सारे पॉइंट्स कहां होंगे? ऐसे ये दोनों के बीच। आर यू गेटिंग मी? चलो -2 और -12, -2 यहां है, -12 यहां है, वो दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट होगी और ये दोनों के बीच के पॉइंट सब ऐसे आपको मिलेंगे। चलिए फिर 2 0 y कोऑर्डिनेट इज 0, 6 ऑन x एक्सिस पे 2 कहां है? यहां है। तो ये कुछ इसके बीच के पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको, है ना? चलिए फिर -3 -20, -3 is here, -20 is here, दोनों यहां मिलेंगे। यू नो नो प्लॉटिंग चिल्ड्रन, ये दोनों के बीच के पॉइंट ऐसे मिलेंगे, फिर ऐसे आपको पता चल गया कि आगे ऐसे बढ़ेगा। चलिए 3 -2, 3 और -2 यहां, ये दोनों के बीच के पॉइंट ऐसे रहेंगे और आप समझ सकते हैं ऐसे आगे। This graph is parabola open downward. Why this is open downward? क्योंकि look at the coefficient of x square, उसको a कहते हैं, that is -1, and if you find that negative, if the leading coefficient of that quadratic polynomial is negative, then parabola will be open downward. If it is positive, then parabola will be open upward. If the equation has two solutions, equation we call polynomial. If polynomial has two zeros, then that parabola will intersect x-axis in two distinct points. देखो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ? So ये जो पॉइंट है that is 1 0 और ये जो पॉइंट है that is 2। so ये पॉइंट से आपको मिलता है x equal to 1, यहां मिलता है x equal to y तो 0 ही है। Alright, see children, now I find the zeros of this polynomial. ये polynomial का जीरो ढूंढते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। बोलिए -x² + 3x - 2 equal to 0 लिख देना पड़ेगा if you want to find zeros। चलिए, so multiply -1 on both sides, so signs will change, +x² - 3x + 2, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई में -1। नाउ आई कैन राइट डायरेक्टली, कौन बताएगा मुझे? चलिए पहले तो टर्म x ही होगा, 2 1 = 2 and दोनों -1 -2, so x -1 = 0 और x -2 = 0, so x is equal to 1 और x is equal to 2, that means alpha is 1 and beta is 2। वही तो है अल्फा और बीटा, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है, रियल नंबर है, दैट इज द जीरो ऑफ दैट। आपकी समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड? whenever you draw the graph, you find out that graph intersects x-axis in how many points? If it intersects x-axis in 1 point, then it is going to have only 1 zero. If it intersects in 2 points, it will be having 2 zeros. 3 points, then 3 zeros. 5 points, then शायद हो सकता है कोई ग्राफ ऐसे 5 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गए। हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे बहुत सारे डायग्राम्स है, और डायग्राम देखते ही आप बता देंगे हाउ मेनी जीरोस दैट पॉलिनोमियल हैज। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ विल टेक एक और पॉलिनोमियल, जहां बताओ जहां ग्राफ विल इंटरसेक्ट x axis in only, and though that is quadratic polynomial, it will have only 1 0। तो मुझे ऐसा quadratic polynomial चुनना पड़ेगा।
मैं चुन लूंगा। दिस वन इज ग्राफ। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करो तो मैंने बोल्ड लाइन ड्रॉ करो। P of x is equal to minus x square plus, this is graph of P of x is equal to minus x square plus 3x minus 2. ये इसका ग्राफ, राइट, विच इज पैराबोला ओपन। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, ग्राफ तो पैराबोला ही होना, but it will be open upward if its leading coefficient is positive and it will be open downward if its leading coefficient is negative. लीडिंग कोएफिशिएंट समझते हैं ना, ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 और वो a ही लीडिंग कोएफिशिएंट। चलिए थर्ड, p of x is equal to, अब ग्राफ शुड इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, तो मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेना होगा जिसका 0 1 हो। एक्चुअली दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। वो कौन सा पोलिनोमियल होता है? तो देखो यहां मैंने x स्क्वायर लिख दिया प्लस 1, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, मिडिल टर्म प्लस और माइनस में माइनस ले रहा हूं 2x। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, इसका एक ही 0 मिलता है। चलिए देख लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके, राइट। पहले तो मुझे इसको y बताना होगा, y is equal to x square minus 2x plus 1. Then I need the values of x and y. That is the solution of this equation. बोलो, मैं पहले 0 ले लेता हूं, ओरली करेंगे 0 स्क्वायर 0 और ये 1, 1 ले लेता हूं, 1 स्क्वायर 1, 1 and 1 2, 2 1 जा 2, ये 0 मिलेगा। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी मैं भी गलती कर सकता हूं, आई कैन मेक मिस्टेक। -1 स्क्वायर प्लस 1 ही हो गया और ये प्लस 2 हो गया, सो दैट विल गिव मी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। चलिए 2 ले लेता हूं, 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 विद माइनस साइन, ये कैंसिल, सो ये 1। -2 लेता हूं, ये तो प्लस 4 और ये भी प्लस 4 8 और ये 9। चलिए 3 ले लेता हूं, 3 स्क्वायर 3 2 जा 6, 9 minus 6 3, 3 plus 1 -3 लेता हूं, प्लस 9, ये प्लस 6 15 और 1 16, -4 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25 और ये प्लस 16 -8 प्लस 1, ठीक है। ये 25 ज्यादा ले लिया, 25 यहां नहीं आएगा तो मेरे पास y एक्सिस है ना। जरा रेंज चेक कर लीजिए, -9 to 9 और ये -12 to 12, सारे रियल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ x रेंज इज बिटवीन -9 and 9, सो नो प्रॉब्लम फॉर x एक्सिस। y एक्सिस में 25 है, हमारा जो है वहां 25 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे अभी। या अब इमेजिन कर सकते हैं, ये 22 आएगा, आप थोड़ा लंबा कर दीजिए, ये 24, ये 26, यहाँ आएगा कि नहीं? चलिए देखते हैं, उसको भी कवर कर लेंगे। चलो 0 1, ये सारे रेड पॉइंट्स पिछले वाला ग्राफ का था, अब मैं ब्लू पॉइंट्स ड्रॉ करूं। 0 1, x कोऑर्डिनेट इज 0, सो पॉइंट इज ऑन and where y equal to 1, कहां है y equal to 1? है ही नहीं। अरे भाई 0 और 2 के बीच एग्जैक्टली बीच में, वही दिक्कत है हमारा। When the scale changes, थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है। चल 1 0, this time y coordinate is 0, so the point should be on and which real number? 1। कहां है 1? अरे वाह, रिपीट हो गया। -1 4, कहां है -1? यहां। 4 कहां है? वो भी है, ये रहा, राइट। 2 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 और 1 यहां, राइट। -2 9, ये -2 और 9 8 और 10 के बीच, ये रहा। 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट 3 और 4, ये रहा। -3 16, -3 और 16,
कुछ यहां -4 25 यहां -4 और 25 ये दोनों के बीच 4 9 4 and 9 8 और 10 के बीच। अब सारे पॉइंट्स में ले लो, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x ले लो, तो इनके बीच ही वो सब सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग मी? दैट्स व्हाई वी ड्रॉ फ्री हैंड, दैट इज ऐसे। समझ में आ रहा है? सो इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस ओनली इन राइट पॉइंट। और यहां x इक्वल कौन सा है ऑर्डर पे? 1 0, so x equal to 1 and that is the 0 of this polynomial. Are you getting me? So this polynomial has only 1 0. क्यों? देख लो ना, this x square minus 2x plus 1 equal to 0. So x minus 1 into x minus 1 equal to 0. So x equal to 1 और x equal to 1. रिपीट हो रहा है, रिपीटेड रूट है, रिपीटेड जीरोस है, तो जीरो तो एक ही ना। Now let's see one example where हम black dots draw करेंगे, where that parabola is not going to intersect x-axis. If it intersects y-axis, no problem. But if it doesn't intersect x-axis, then it has no zeros. If it doesn't intersect x-axis, means that parabola is going to be in the upper half plane of x-axis, या तो फिर lower half plane. Upper half plane में कब रहेगा? If it is open upward. Lower half plane में कब रहेगा? If it is open right. तो मुझे एग्जाम्पल देना होगा। यहाँ 3 ग्राफ्स ड्रॉ किया। Now fourth one, p of x is equal to x square plus x, चलिए माइनस, दिस इज द ग्राफ। ओके, इसका फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा आपको, फैक्टर्स ही नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स देयर आर नो जीरोस, रियल जीरोस नहीं, x and y. Should I start? y is equal to x square plus x minus 1. x की वैल्यू 0 लूंगा, y की वैल्यू -1 मिलेगी। x की वैल्यू 1 लूंगा, 1 plus 1 minus 1, so 1 ही मिलेगा। x की वैल्यू -1 लूंगा, तो ये 1 ये -1 होगा। x की वैल्यू 2, if I take 4 plus 6 and ये 5 रहेगा। -2 if I take, that is 4 minus 3, 1 मिलेगा। 3 लूं तो 9 plus 3 12 minus 1 11, -3 लूं तो भी 9 और 9 minus 4 5, है ना? Will that be enough? Enough. जरूर पढ़े तो आपने आगे ले straight away I will start plotting. 0, I have taken black pen now, black dots for the today's third graph. Okay, x coordinate is, so the point has to be on y-axis. And which real number on y-axis? y-axis पे -1. yes, 0 और -2 के बीच आएंगे ये पॉइंट, मिला ना चिल्ड्रन? ये तो इंटरसेक्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं। 1 1, that is in the first quadrant, 1 और 1, first quadrant ऊपर ही रहना चाहिए था। -1 that will be here, -1 ये वाला पॉइंट है ना। फिर 2 पाई कहीं यहीं पे, राइट। फिर -2 1, -2 और 1, ये तो गड़बड़ हो गई चिल्ड्रन। -2 1, तो आप समझ सकते हैं ना, दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द ग्राफ एंड इट इज इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और कुछ रियल नंबर्स आ रहा है, यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां इंटरसेक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो इरेशनल रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे? इरेशनल, √1
નંબર લાઈન ઉપર તમે you all have represented natural numbers, whole numbers, rational numbers, irrational number. પેલું પાયથાગોરસ વાળું યુઝ કરીને જ્યોમેટ્રિક કન્સ્ટ્રક્શન મેથડ. એટલે આ જે કોઈ પોઈન્ટ હશે ને ઇટ શુડ બી ઇરેશનલ. वो कोई irrational હશે. So I am getting to irrational. Do you understand? तो कहने का मतलब मैंने जो सोचा था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा, उसका पैराबोला विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, उसमें मैं गलत हुआ. इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट, सो दिस विल हैव टू जीरोस, दिस विल हैव टू जीरोस, और वो दो जीरोस इरेशनल होंगे. कैसे होंगे? अब रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, है तो रियल ही ना, तो रूट्स आर रियल. ओके, जब नहीं इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस को तब उसके रूट्स अनरियल रहते हैं. ऑलराइट, तो मुझे बदलना पड़ेगा, तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. यही वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो हम फिक्स रखते हैं, है ना. 0 लिया तो 1 आएगा, 1 लिया तो 3 आएगा, -1 लिया तो 1 आएगा, 2 लिया तो 4 6 और 7 आएगा, -2 लिया तो 3 आएगा, है ना. -2 4, 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3 लिया 6 and 9 and 3 12 and 1 13, -3 लिया तो 9 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7. ठीक है, अब प्लॉट करते हैं. अब कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन लेना पड़ेगा. 0 1, इट हैज टू बी ऑन y एक्सिस. ये वाला पॉइंट 0 1 है ना, 0 1. फिर 1 3, 1 3. अरे चिल्ड्रन, ये भी आने वाला, ऐसा ही आने वाला. डिस्क्रिमिनेंट b is b square minus 4ac. 1 minus या ये तो या ये आएगा चिल्ड्रन, ये है कहा 0 1. ओके 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 ओके, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है. थैंक यू. यस, दिस इज 0 1, सो y 1 होना चाहिए, ये वाला है ना. फिर 1 3, ओके, ये 1 और ये 3 यहां बीच आएगा. 1 3, -1 1, -1 और 1 यहां आएगा. फिर 2 7, 2 यहां है, 7 6 और इसके बीच. -2 3, -2 यहां है, 3 यहां होगा. 3 13, 3 यहां है, 13 12 और 14 के बीच है, यहां होगा. -3 7, -3 यहां है, 7 यहां होगा. अब समझ सकते हैं, देखो इसके बीच ऐसे. फिर कहा ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये है ना. आर यू गेटिंग मी? ऐसे ऐसे. सो देखो, जस्ट अबव एक्स एक्सिस से निकल जाता है. सो इट हैज नो, so children, here we saw the graph of second chapter. Okay, quadratic polynomial. So what is the graph of a quadratic polynomial? Parabola, which is either open upward or open downward. Idhar hai kya? Okay, so that's all in this session. Tomorrow we'll see solution, those 4 methods, and since we are doing graph, we'll see the graphical method first. But you will be given a pair of linear equation in 2 variables and you have to solve. And for every pair of linear equation in 2 variables, there can be 3 possibilities. It has unique solution, it has no solution, and it has infinite solution. We'll try to understand by graphical method first. Okay, see you tomorrow. Till then, goodbye. Have a nice day.